اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علمبردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھولدار چادریں ڈال دی گئی تھیں۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے دل کی چال آ رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ اور برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھتا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زوما میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی، پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگدار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگے کپڑے جھنڈیوں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان آویزاں اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندھی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئیں اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھیں۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کی لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا ہوا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کر لی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیغ زنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی اور وہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیق دستے کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے۔ ان میں
तेल जैसी कोई चीज भरी हुई थी जो मंजनीकों से फेंकी जाती थी। जहां ये बर्तन गिरता था वो कई टुकड़ों में टूटकर सियाल मादे को बहुत सी जगह पर बखेर देता। उस पर आतिशी तीर चलाए जाते तो सियाल मादा शोले बन जाता। सुल्तान अयूबी की क़यादत में ये सवार और प्यादा दस्ते नीम दायरे में खड़े और बैठे हुए तमाशाइयों के आगे से दूर आगे निकल गए। सलाहुद्दीन अयूबी रास्ते में से वापस आ गया। उसके घोड़े के आगे अलंबरदारों के घोड़े, दाएं और बाएं पीछे मुहाफिजों के घोड़े और उनके पीछे नायब सालारों के घोड़े थे। सुल्तान ने घोड़ा रोक लिया, कूद कर उतरा और तमाशाइयों को हाथ हवा में लहरा लहरा कर सलाम करता शामियाने के नीचे चला गया। वहां बैठे हुए तमाम लोग उठ खड़े हुए। सुल्तान अयूबी ने सबको सलाम किया और अपनी नशिस्त पर बैठ गया। सवार और प्यादा दस्ते दूर आगे जाकर टीलों के अकब में चले गए। मैदान खाली हो गया। एक घुड़सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे में ऊंट की रस्सी थी। ऊंट घोड़े की रफ्तार के साथ दौड़ता आ रहा था। मैदान के वस्त में आकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। उसने बागें छोड़ दी। वो उछलकर ऊंट की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया और वहां से जमीन पर कूद गया। चंद कदम घोड़े और ऊंट के साथ भागा, फिर कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़े और ऊंट की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। घोड़े की पीठ से वो ऊंट की पीठ पर चला गया और दूर आगे जाकर गायब हो गया। खादिमुद्दीन अलबर्क दाएं को जरा सा झुका। उसके मुंह और लड़की के सर के दरमियान 2-3 इंच का फासला रह गया था। लड़की ने उसे देखा। अलबर्क मुस्कुराया। लड़की शर्मा गई। बूढ़े ने दोनों को देखा। उसके बूढ़े माथे के शिकन गहरे हो गए। अचानक टीलों के पीछे से हांडियों की तरह के मिट्टी के वो बर्तन जो घोड़ा गाड़ियों पर लदे हुए थे ऊपर को जाते, आगे आते और मैदान में गिरते नजर आए। बर्तन टूटते थे तो तेल उछलकर बिखर जाता। कमोबेश 100 बर्तन गिरे और उनसे निकला हुआ मादा तकरीबन 100 गज लंबाई और इसी कदर चौड़ाई में बिखर गया। एक टीले पर 6 तीरंदाज नमूदार हुए। उन्होंने जलते हुए तीर चलाए जो सियाल मादे वाली जगह गड़ गए। फौरन वो तमाम जगह एक ऐसा शोला बन गई जो घोड़े की पीठ तक बुलंद और कोई 100 गज तक फैला हुआ था। एक तरफ से 4 घुड़सवार घोड़े पूरी रफ्तार से दौड़ते आए। शोले के करीब आकर वो रुके नहीं, रफ्तार भी कम न की। चारों शोलों में चले गए। तमाशाई दमबखुद थे कि वो जल जाएंगे, मगर वो इतने वसी शोले में दौड़ते नजर आ रहे थे। आखिर वो चारों शोले में से निकल गए। तमाशाइयों ने दादो तहसीन का वो शोर बुलंद किया कि आसमान फटने लगा। 2 सवारों के कपड़ों को आग लग गई थी। दोनों भागते घोड़ों से रेत पर गिरे और थोड़ी दूर लुढ़कनियां खाते गए। उनके कपड़ों की आग बुझ गई। अलबर्क इस शोर-ओ-गुल और सवारों के कमालात से नजरें फेरे हुए लड़की को देख रहा था। लड़की उसकी तरफ देखती और जरा सा मुस्कुराकर बूढ़े को देखने लगती। बूढ़ा उठकर जाने क्यों चला गया। लड़की उसे जाता देखती रही। अलबर्क को मालूम था कि लड़की बूढ़े के साथ आई है। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ चले गए? लड़की ने जवाबन कहा, ये मेरा बाप नहीं, मेरा खावंद है। अलबर्क ने हैरत से पूछा, खावंद? क्या ये शादी तुम्हारे वालिदैन ने करवाई है? लड़की ने उदास लहजे में कहा, इसने मुझे खरीदा है। अलबर्क ने पूछा, वो कहाँ गया? लड़की ने जवाब दिया, वो नाराज होकर चला गया है। उसे शक हो गया है कि मैं आपको दिलचस्पी से देखती हूँ। अलबर्क ने रूमानी अंदाज से पूछा, क्या तुम वाकई मुझे दिलचस्पी से देखती हो? लड़की के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। धीमी सी आवाज में बोली, मैं इस बूढ़े से तंग आ गई हूँ। अगर किसी ने मुझे इससे निजात न दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैदान में सवार और प्यादा फौजी हैरान कुन करतब दिखा रहे थे और हरबो ज़र्ब के मुजाहरे कर रहे थे। तमाशाइयों ने जंगी मुजाहरे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने सिर्फ सूडानी फौज देखी थी जो खजाने के लिए सफेद हाथी बनी हुई थी। उसके कमानदार बादशाहों की तरह बाहर निकलते। उनके साथ अगर फौज का दस्ता हो तो वो देहात के लिए मुसीबत बन जाते। मवेशी तक खोल कर ले जाते। किसी के पास अच्छी नस्ल का ऊंट घोड़ा देखते तो जबरदस्ती ले जाते। लोगों के दिल में ये बात बैठ गई थी कि फौज रियाया पर जुल्म तशद्दुद करने के लिए रखी जाती है। लेकिन सुल्तान की फौज बहुत मुख्तलिफ थी। एक तो वो दस्ते थे जो मुजाहरे में शरीक थे। बाकी फौज को सुल्तान की हिदायत के मुताबिक तमाशाइयों में फैला दिया गया ताकि वो लोगों के साथ घुल मिलकर उन पर ये तासुर पैदा करें कि फौजी उनके भाई हैं और उन्हीं में से हैं। बदतमीजी या बदअखलाकी करने वाले फौजी के लिए बड़ी सख्त सजा मुकर्रर की गई थी। खादिमुद्दीन अलबर्क जो सुल्तान अयूबी की जंगी मुशावरती महकमे का सरबराह और राजदान था, सुल्तान की हिदायत और मेले के शोरगुल से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गया था। लड़की एक जादू बनकर उसकी अक्ल पर गालिब आ गई थी। उसने लड़की में दिलचस्पी का इजहार किया। उसे लड़की ने कबूल कर लिया था।
इससे दोनों के लिए सहूलत पैदा हो गई। अलबर्क ने कहीं मिलने को कहा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो खरीदी हुई लौंडी है और उस बूढ़े ने उसे कैद में रखा हुआ है, वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। लड़की ने ये भी बताया कि बूढ़े के घर 4 बीवियां हैं। अलबर्क ने अपने रुतबे को फरामोश कर दिया। इश्कबाज नौजवान की तरह उसने मुलाकात की वो जगह बताना शुरू कर दी जहां आवारा आदमियों के सिवा कोई नहीं जाता था। उन जगहों में एक जगह लड़की को पसंद आ गई। ये शहर से बाहर कदीम जमाने का कोई खंडर था। अलबर्क ने लड़की से ये वादा भी किया कि वो उसे बूढ़े से आजाद करवाने की कोशिश करेगा। तीसरी रात अलबर्क घर से निकला। वो हाकिमों की शान से घर से निकला करता था, मगर उस रात वो चोरों की तरह बाहर निकला। इधर उधर देखा और एक तरफ चल पड़ा। काहिरा पर सुकूत तारी था। फौजी मेला खत्म हुए 2 दिन गुजर गए थे। बाहर से आए हुए तमाशाई जा चुके थे। सरकारी हुक्म के तहत आरजी कहबा खाने उठा दिए गए थे। अली बिन सुफियान का महकमा अब ये सुराग लगाता फिर रहा था कि बाहर से आई हुई कितनी लड़कियां और कितने मशकूक लोग शहर या मजाफाती देहात में रह गए हैं। मेले का मकसद पूरा हो गया था। 2 ही दिनों में 4000 जवान फौज में भर्ती हो गए थे और मजीद भर्ती की तवक्को थी। अलबर्क शहर से निकल गया और उसने उस खंडर का रुख किया जहां लड़की को आना था। सहराई गीदड़ों के सिवा जमीन व आसमान गहरी नींद सो गए थे। लड़की ने अलबर्क से कहा था कि वो बूढ़े की कैदी है और वो उस पर हर वक्त नजर रखता है। फिर भी अलबर्क इस उम्मीद पर जा रहा था कि लड़की जरूर आएगी। मुमकिन खतरों से निपटने के लिए उसके पास एक खंजर था। औरत ऐसा जादू है कि जिस पर तारी हो जाए वो किसी की परवाह नहीं किया करता। अक्ल दानिश उसका साथ छोड़ जाते हैं। अलबर्क पुख्ता उम्र का आदमी था, मगर वो नादान नौजवान बन गया था। उसे अंधेरे में खंडर के करीब एक तारीक साया सर से पांव तक लिबादे में लिपटा हुआ नजर आया और खंडर के खड़े स्याह भूत में जज्ब हो गया। वो तेज तेज चलता खंडर में पहुंचा। गिरी हुई दीवार के शगाफ से वो अंदर गया। आगे अंधेरा कमरा था। छत में बड़ी जोर से कोई बहुत बड़ा परिंदा फड़फड़ा रहा था। अलबर्क ने हवा के तेज झोंके महसूस किए और अचानक उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा। उसके साथ ही उसे चींची की आवाज सुनाई देने लगी। वो जान गया कि ये बड़े चमगादड़ हैं जिनके पंजे उसका मुंह नोच डालेंगे। वो बैठ गया और पांव पर सरकता कमरे से निकल गया। कमरा उड़ते चमगादड़ों से भर गया था। आगे सहन था जिसके इर्द गिर्द गोल बरामदा था। अलबर्क ने यह भी न सोचा कि एक खरीदी हुई कैदी लड़की जिस पर हर वक्त नजर रखी जाती है इस हैबतनाक खंडर में कैसे आएगी। मगर बरामदे में किसी के कदमों की दबी दबी आहटों ने उसे बता दिया कि यहाँ कोई मौजूद है। उसने कमर से खंजर निकालकर हाथ में ले लिया। उसके सर पर चमगादड़ उड़ रहे थे। फड़फड़ाने की आवाजें डरावनी थीं। अलबर्क ने आहिस्ता से कहा, आसिफा। लड़की ने उसे अपना नाम बता दिया था और मेले में ये भी बता दिया था कि वो किस तरह फरोख्त हुई है। उसे आसिफा की आवाज सुनाई दी, आप आ गए। वो बरामदे में से दौड़ती आई और अलबर्क के साथ चिपक गई। कहने लगी, आपकी खातिर जान को खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे जल्दी वापस जाना है। बूढ़े को शराब में नींद का सफूफ पिला आई हूँ, वो जाग न उठे। अलबर्क ने कहा, क्या तुम उसे शराब में जहर नहीं पिला सकती? आसिफा ने कहा, मैंने कभी कत्ल नहीं किया। मैंने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि इस तरह किसी गैर मर्द से मिलने इस डरावने खंडर में आऊंगी। अलबर्क ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया। अचानक उनके पीछे बरामदा रोशन हो गया। जिस कमरे में से अलबर्क गुजर कर आया था उसमें से 2 मशलें निकली। ये लकड़ियों के सरों पर तेल में भीगे हुए कपड़े लपेट कर बनाई गई थी। उनके शोले खासे बड़े थे। अलबर्क ने आसिफा को अपने पीछे कर लिया। उसके हाथ में खंजर था। क्या ये खंडर में रहने वाली बदरूहें थीं या लड़की के ताकुब में उसका खावंद आ गया था? अलबर्क अभी सोच ही रहा था कि एक आवाज गरजी, दोनों को कत्ल कर दो। मशलें करीब आईं तो उनके नाचते शोलों में अलबर्क और आसिफा को 4 आदमी नजर आए। एक के हाथ में बर्छी और 3 के पास तलवारें थीं। उन्होंने मशलें जमीन में गाड़ दी। खंडर का सहन रोशन हो गया। चारों आदमी अलबर्क के गिर्द भूखे भेड़ियों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चक्कर में चलने लगे। आसिफा उसके पीछे थी। बरामदे में से एक और आवाज आई, मिल गए, जिंदा न छोड़ना। ये लड़की के बूढ़े खावंद की आवाज थी। आसिफा अलबर्क के अकब से आगे आ गई। उसने हिक्कारत और गुस्से से बूढ़े से कहा, आगे आओ और मुझे कत्ल कर दो। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। चारों मुसल्ला आदमी इनके गिर्द खड़े थे। बर्छी वाले ने बर्छी आहिस्ता आहिस्ता आसिफा की तरफ की और उसकी नोक उसके पहलू से लगाकर कहा, मरने से पहले बर्छी की नोक देख लो, लेकिन तुमसे पहले ये शख्स तड़प तड़प कर तुम्हारे सामने मरेगा जिसकी खातिर तुम यहाँ आए हो। आसिफा ने झपट्टा मारकर बर्छी पकड़ ली और झटका देकर बर्छी छीन ली। आसिफा अलबर्क से अलग हो गई। फिर ललकार कर बोली, आओ, आगे आओ।
मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे पहले इस आदमी को किस तरह कत्ल करते हो। अलबर्क खंजर आगे किए उसके सामने आ गया। लड़की ने बर्छी से उस पर वार किया जिससे उसने बर्छी छीनी थी। वो आदमी पीछे को भागा। उसके साथियों ने अलबर्क पर हमला करने की बजाय सिर्फ पैंतरे बदले। वो अलबर्क को आसानी से कत्ल कर सकते थे, मगर वो बढ़कर हमला नहीं कर रहे थे। आसिफा की ललकार गरज रही थी। वो बढ़ बढ़कर वार करती थी, मगर वार खाली जाता। अलबर्क ने एक आदमी पर खंजर से हमला किया तो 2 आदमी उसके पीछे आए। आसिफा एक ही जस्त में उसके पीछे हो गई। उसके हाथ में लंबी बर्छी थी जो तलवार का मुकाबला कर सकती थी। खंजर तलवार के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। बूढ़ा एक तरफ खड़ा अपने आदमियों को ललकार रहा था। थोड़ी सी देर उन्होंने अलबर्क और आसिफा पर हमले किए। आसिफा उन पर टूट टूट पड़ती। अलबर्क वार बचाता था और खंजर से वार करने की कोशिश करता था, मगर अजीब अमर ये था कि लड़की के हमलों के बावजूद कोई जख्मी नहीं हुआ। बूढ़े के आदमियों ने भी तेगजनी के जौहर दिखाए, मगर अलबर्क और आसिफा को खराश तक न आई। इतने में बूढ़े ने कहा, रुक जाओ, और लड़ाई बंद हो गई। बूढ़े ने कहा, मैं ऐसी बेवफा लड़की को घर में नहीं रखना चाहता। मुझे मालूम नहीं था कि ये इतनी दलेर और बहादुर है। अगर इसे मैं जबरदस्ती ले भी गया तो ये मुझे कत्ल कर देगी। अलबर्क ने कहा, मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत दूंगा। कहो तुमने इसे कितने में खरीदा? बूढ़ा हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा और अलबर्क से हाथ मिलाकर बोला, मेरे पास दौलत की कमी नहीं, मैं ये लड़की तुम्हें बख्श देता हूँ। इसे तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत है कि तुम्हारी खातिर इतने सारे आदमियों के मुकाबले में आ गई। मैं इसे इसलिए भी तुम्हारे हवाले करता हूँ कि ये जंगजू नस्ल की लड़की है। मैं ताजिर और सौदागर हूँ। ये किसी तुम जैसे जंगजू के घर में अच्छी लगेगी। तीसरी वजह यह है कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की हुकूमत के हाकिम हो। मैं सुल्तान का वफादार और मुरीद हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। जाओ, मैंने इसे तलाक दी और इसे तुम पर हलाल कर दिया। चलो दोस्तों, इन्हें अकेला छोड़ दो। वो मशलें उठाकर चले गए। अलबर्क की हैरत की इंतहा ये थी कि उसके पांव तले जमीन हिलने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे बूढ़े का फरेब समझ रहा था। उसे ये खतरा नजर आ रहा था कि ये लोग रास्ते में घात लगाकर इन दोनों को कत्ल करेंगे। आसिफा के हाथ में बर्छी थी। वो अलबर्क ने ले ली और कुछ देर बाद खंडर से निकले। वो दाएं बाएं और पीछे देखते तेज तेज चलने लगे। जरा सी आहट सुनाई देती तो वो चौंक कर रुक जाते। हर तरफ अंधेरे में देखने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते। शहर में दाखिल हुए तो उनकी जान में जान आई। आसिफा ने रुककर बाजू अलबर्क के गले में डाल दिए और पूछा, आपको मुझ पर एतमाद है या नहीं? अलबर्क ने उसे सीने से लगा लिया। उस पर जज्बात का इतना गलबा था कि कुछ बोल न सका। लड़की ने उसे बेदाम खरीद लिया था। उसे ये तो अब पता चला था कि लड़की उसे कैसी दीवानगी से चाहती है और कितनी बहादुर है। दरअसल वो लड़की के हुस्न पर मर मिटा था। उसकी बीवी उसकी हम उम्र थी। आसिफा को देखकर उसने महसूस किया कि वो बीवी उसके काम की नहीं रही। उस दौर में जब औरत फरोख्त होती थी, घर में बीवी की कोई हैसियत नहीं थी। बैक वक्त 4 बीवियां तो खावंद अपना हक समझता था, लेकिन जो पैसे वाले थे वो 2-4 खूबसूरत लड़कियां बगैर निकाह के रख लेते। मुसलमान उमरा को औरत ने ही तबाह किया था। उनके यहाँ ये भी रिवाज था कि एक आदमी की बीवियां खावंद की खुशनुदी हासिल करने के लिए ढूंढ ढूंढ कर खूबसूरत लड़कियां खावंद को बतौर तोहफा पेश करती। अलबर्क जब आसिफा को साथ लिए घर में दाखिल हुआ तो सब सोए हुए थे। सुबह उसकी बीवी ने अपने खावंद के पलंग पर इतनी हसीन लड़की देखी तो उसे जर्रा भर महसूस न हुआ कि उसका सुहाग उजड़ गया है, बल्कि वो खुश हुई कि उसके इतने अच्छे खावंद को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। उसके आ जाने से वो कुछ फराइज से सुबकदोश हो गई थी। अलबर्क की हैसियत ऐसी थी कि वो ऐसी एक और बीवी यादाश्ता रख सकता था।